Okay, now let's move on to question number 2. Now, if this problem is asked, this is going to carry 3 marks, weightage 3 marks. Okay, so let's begin with the substitution. Okay, तो क्या करेंगे, देखो substitution. Let x is equal to pi by 2 plus h. Plus h हमेशा आएगा, ऐसा आप याद रखो. As x is tending towards a, तो सब्स्टिट्यूशन क्या है स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू a प्लस h, जो भी a का वैल्यू है, जरूर नहीं कि पाई बाय 2 है. नाउ इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंट कि प्रीवियस एग्जांपल और ये एग्जांपल दोनों में पाई बाय 2 है. x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 रहेगा तो 1 प्लस h आएगा, x टेंडिंग टुवर्ड्स 5 रहेगा तो 5 प्लस h आएगा. x इज इक्वल टू whatever is it according to the problem, the substitution is going to vary. Okay, let x is equal to pi by 2 plus h is the substitution. अभी हम लिमिट को चेंज कर देंगे. Now what we say, as x is tending towards pi by 2, therefore h is tending towards 0. Right now I have explained, as x is tending towards pi by 2, h tends towards 0. Direct लिखना है आपको. You need not to give that lengthier explanation which I gave you. Not required. जरूरत नहीं है. Now what we do, all these things, x is equal to pi by 2 plus h डालने का और लिमिट को चेंज करने का. ओके, तो राइट डाउन नेक्स्ट स्टेप. Therefore L is equal to, राइट डाउन, लिमिट h is tending towards 0. ओके, x tending towards pi by 2 के जगह पे h tending towards 0 आएगा. ओके, cosec x will be replaced by pi by 2 plus h, as we have done in the previous example. जहां पे भी आपको x दिखेगा ना, x के जगह पे ये सब्स्टिट्यूशन डालने का. ओके, -1 remains same upon in the denominator pi by 2 minus x के जगह पे pi by 2 plus h आएगा, and the whole square remains. Close the bracket. x के जगह पे pi by 2 plus h आएगा. ठीक है. Now see what we have done. x tending towards pi by 2 था, उसके जगह पे h tending towards 0 डाला. x के जगह पे pi by 2 plus h डाला, यहाँ पे x के जगह पे pi by 2 plus h डाला. But now there is one mistake in this. ठीक है. Now see this. Purposely I have written this way, because students many times they have seen, many times they are writing down this way. अभी यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में क्या गलती है देखो, मैं आपको बताता हूँ. Now if you observe, no doubt x is replaced by pi by 2 plus h, but ये x के पहले there is a minus sign, है ना. तो now what care you have to take while solving the problem, कि अगर x को pi by 2 plus h से replace किया ना, तो ये pi by 2 तो cancel हो जाएगा, but this only h will be remaining. That is not correct. इधर ये ब्रैकेट आएगा x के लिए, ये जो pi by 2 plus h है, that should be put up in the bracket because of this minus sign. So that care should be taken by us. I've seen many times by so much of explanation also, ना student यही गलती करता है, ब्रैकेट नहीं डालता है. लोअर स्टैंडर्ड्स में 8th स्टैंडर्ड में हमको सिखाया जाता है ना, ब्रैकेट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, types of brackets डालते हैं. So that's why it continues in mathematics, in higher mathematics also. So brackets play an important role. So if you have not put up, please put up this bracket over here. कहीं पे भी ब्रैकेट डालने की आदत हमेशा अच्छी है, whether it's a plus sign or minus sign. ठीक है. चलो, तो I hope first to everyone. Now you write down. See, since it is trigonometric limits, I am going slow. Okay. Now let us simplify the numerator as well as denominator. तो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, लिमिट h is tending towards 0. Now can anyone tell me cosec pi by 2 plus theta is equal to what? Sec h. Cosec h. Sec No. h. Yes, correct. It is sec h. Absolutely correct. Cosec pi by 2 plus h is nothing but equal to sec h. -1 remains same. ठीक है. आपका आंसर रॉन्ग रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. इट इज जस्ट द बिगिनिंग, so you can rectify. Okay.
तो चलो cosec gets converted to sec, recollect trigonometry, cosec pi by 2 plus theta is sec theta, हाँ तो sec h में कन्वर्ट हो गया। अच्छा अभी आप देखो ध्यान से, ये जब माइनस साइन से ब्रैकेट ओपन हो जाएगा ना, तो ये दोनों टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगे, both the terms will become negative, and then what is going to happen, this pi by 2 gets cancelled with this minus pi by 2, तो स्क्वायर के अंदर क्या बचेगा पता है, माइनस एच द होल स्क्वायर रिमेन्स। चेक दिस आउट, दिस माइनस साइन, चलो मैं करके बता देता हूँ। इसके बाद ये जो माइनस साइन है वो दोनों को जाएगा, इसको भी जाएगा और इसको भी जाएगा। रिटर्न द प्रीवियस स्टेप, मैंने इसी में चेंज कर दिया। अब ये पाई बाय 2 उसके साथ कैंसिल हो जाएगा एंड माइनस एच द होल स्क्वायर बचेगा। ओके, नाउ एज वी ऑल नो ये स्क्वायर है, तो माइनस एच द होल स्क्वायर विल बिकम एच स्क्वायर। अभी स्टार्टिंग में इसलिए मैं सारे स्टेप्स आपको लिख के बता रहा हूँ, बाकी तो आप डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हो, इसका कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, this will be written as sec h minus 1 by h square, ये हो जाएगा, minus h the whole square will be written as h square। ओके, अभी आप देखो ये प्रॉब्लम जो स्टार्टिंग में टाइप 6C वाला था, अब ये सिंप्लीफिकेशन और ऑल ओवर, सॉरी simplifications are all over। Now we have to solve this problem by using type 6A or 6B। 6A या 6B से हमें इसको solve करना है, इस problem को आगे। Okay, now to solve this ahead, we will take the conjugate of the numerator, sec h minus 1 के conjugate से हम multiply divide करेंगे। Okay, तो चलो let's proceed ahead। अभी आप बोलोगे सर आपको कैसे मालूम पड़ा conjugate से multiply divide करना है, तो you need practice of example। अच्छा, दो ऑप्शन है, sec को 1 by cos में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करो, या कॉन्जुगेट से बेटर ऑप्शन। ओके, तो चलो लेट्स डू इट बाय कॉन्जुगेट। लिखो नेक्स्ट स्टेप, दिस इज इक्वल टू, सी ऑल दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। अगर 6A नहीं आया तो 6B नहीं आएगा, 6AB नहीं आया तो 6C नहीं आएगा, लिमिट्स नहीं आया तो कंटिन्यूटी नहीं आएगा, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। तो चलो लिखो क्या मिलेगा, लिमिट h is tending towards 0, it is sec h minus 1 upon h square into conjugate of sec h minus 1 is sec h plus 1, उससे मल्टीप्लाई किया और sec h plus 1 से डिवाइड किया। ठीक है, now see the numerator, numerator is of the form a minus b into a plus b, so can anyone tell me what will numerator become? tan square h minus 1. Yes, absolutely, both of you are correct, sec square h minus 1 हो जाएगा, और अपने को मालूम है कि sec square h minus 1 tan square h होता है, तो डायरेक्ट tan square h लिख देते हैं हम उसको। ओके, राइट डाउन, करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो लिखो लिमिट h is tending towards 0, this will become nothing but tan square h upon h square into sec h plus 1 will remain same। ये देखो ऐसा हो जाएगा। ओके, sec square h minus 1 becomes tan square h। now recollect type 6b, tan theta by theta 1 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट अस क्लब देम टुगेदर, दोनों होल स्क्वायर है ना। सो राइट ऑन नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस, दिस इज फर्दर इक्वल टू, ऐसा लिखो आप, लिमिट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, दिस विल बी रिटर्न एज tan h अपॉन h द होल स्क्वायर होगा। ठीक है, tan square h upon h square will be written as tan h upon h the whole square into what is left out with us, 1 by sec h plus 1 remains and close the bracket। इसको सेपरेट कर दिया उससे। now what is going to happen students, ये जो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है ना, वो इसको भी जाएगा और इसको भी जाएगा, तो लिमिट
स्प्लिट करके दिखाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इट्स नॉट नेसेसरी. नाउ से व्हाट इज गोइंग टू limit h tending towards 0 managed by h is going to become 1 का square into. Now can anyone tell me what should be done for this part? 1 upon sec h plus 1 के लिए क्या करेंगे? Any idea? h substituting only h as sec 0 is equal to 1. Yes, exactly. Very good. Perfect answer. तो h का वैल्यू 0 डालेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि sec 0 का वैल्यू 1 होता है. वेरी गुड, परफेक्ट. तो sec 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 plus 1 2 हो जाता है, तो ये 1/2 है. So the final answer and the value of the limit is 1/2. Problem is over. यहाँ पे h का वैल्यू 0 डाला. कैसे मालूम पड़ा? डिनोमिनेटर नॉन जीरो है ना, इतना आइडिया तो हमें है अभी लिमिट में, ट्रिग्नोमेट्री में. तो ये 1/2 हो गया, ये 1 हो गया, तो फाइनल आंसर इज 1/2. तो ये जो लिमिट हमें इवैल्यूएट करने का था, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके हमने उसको इवैल्यूएट किया. ओके, प्लीज नोट डाउन. नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर फ्यू points that we have to take care of, students. Now what care should be taken? Like this problem is of 3 marks. ठीक है, तो substitution correct होना चाहिए. यहाँ पे allied angle formula. See, board exam में हमें step wise marks मिलने वाले हैं. I'll just show you the distribution how 12th standard में marks are given है ना. अगर ये 3 mark का problem है, तो if I do the problem till here, say for example यहाँ तक सब बराबर है मेरा, ठीक है, या चलो यहाँ तक नहीं, यहाँ तक देख लो आप. If everything is correct up to here, how the examiner correct? 1 mark, because we have corrected board papers, so we are telling you. Excuse me. तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 1 मार्क. अब वो एग्जामिनर क्या देखेगा? यहाँ तक बराबर किया कॉन्जुगेट वाला पार्ट, यू गेट अनदर 1 मार्क. फिर क्या देखेगा? अच्छा हाँ, आंसर बराबर है, हाँ ठीक है, अनदर 1 मार्क. एक्सक्यूज मी. इन बोर्ड एग्जाम अभी सपोज मेरा आंसर के जगह पे 1 आ गया, तो आई लूज माय 1 मार्क. अगर एग्जामिनर ने देख लिया चलो इधर, आई लूज दिस अनदर 1 मार्क. इधर ही कुछ गलती हो गया, तो एवरीथिंग बिकम्स 0. लाइक फॉर एग्जांपल cosec pi/2 plus h है. आई हैव सीन दिस हैपेंस, यू नो. cosec pi/2 plus h को अगर हमने कुछ और लिख दिया इंस्टेड ऑफ sec h, इफ आई से मे बी cos h लिख दिया, गलती से cos h लिख दिया, एग्जामिनर क्या देखेगा? अरे अलाइड एंगल फॉर्मूला ही गलत है. तो ही मे जस्ट गिव यू हाफ मार्क, मे बी ही विल गिव डायरेक्टली 0. आगे देखेगा भी नहीं कि आंसर क्या आ रहा है. जब यही गलत हो जाएगा, इट डजंट मैटर आप गलती करो या मैं गलती करूं, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है. So if something goes wrong over here in the beginning, everything becomes 0. First point to be remembered. So I've given you stepwise explanation of marks. ये एक point हो गया. अच्छा, second thing, when we are solving the problem, what we have to remember कि यहाँ पे limit change करना है. अच्छा, मैंने बहुत बार देखा है स्टूडेंट ये सब h में कन्वर्ट कर देता है, बराबर है, पर यहाँ पे h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 के जगह पे x टेंडिंग टुवर्ड्स pi/2 ही रखता है. तो अगर एग्जामिनर ने देखा कि यहाँ पे x टेंडिंग टुवर्ड्स pi/2 लिखा है, तो ही मे गिव यू 0 फॉर दैट. गलत है. जब सब h में कन्वर्ट हो गया, तो लिमिट भी h में कन्वर्ट होना चाहिए, कंपलसरी है. आप बोलोगे सर ये तो बराबर है, इससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा थोड़ी है ना, ऐसा फर्क पड़ता है. अपना जो सरनेम है वो थोड़ी चेंज कर सकते हैं. हाँ, आपके नाम के आगे कुछ दूसरा सरनेम लगाएगा तो चलेगा क्या? अपने को नहीं चलेगा ना. तो वैसे ही इसका है, इसके आगे h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 चाहिए तो चाहिए, उसको आप और मैं चेंज नहीं कर सकते. तो इट इज कंपलसरी. सी ऑल दीज पॉइंट्स है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स है, बट दे आर ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. I hope I am clarified on this all thing, whatever is necessary, everyone. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So now, yeah, thank you for your response. Now let us move on to the next question after this. Okay. Okay, please note down question number 3. So I'm taking variety of examples. पहले तो pi/2 वाला लिया, अभी pi/6 वाला लिया. Undoubtedly, it's a trigonometry. Now this question will also carry 3 marks in exam. Okay, so let us use the substitution over here. देखो 6a से solve नहीं हो सकता. How do you identify? Identify, देखो fundamental identity use नहीं कर सकते,
6b sin theta by theta नहीं अप्लाई कर सकते एंड प्रॉब्लम इज 0/0 फॉर्म, ये 0/0 फॉर्म है. So substitution method is the only one option with which the problem gets evaluated. Okay, तो लिखो substitution क्या आएगा. Let x is equal to pi by 6 plus h is always compulsory. Previous two examples में x is equal to pi by 2 plus h लिया, तो pi by 6 plus h. अभी reason as x tends to pi by 6, therefore h tends to 0. This conversion is compulsory. ठीक है. अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जहां पे भी x है वहां पे pi by 6 plus h लिखेंगे और लिमिट हम चेंज कर देंगे. सॉरी, नेक्स्ट स्टेप. Therefore L is equal to limit h is tending towards 0 ब्रैकेट. न्यूमरेटर में लिखो आप cos x, x के जगह पे आएगा pi by 6 plus h माइनस √3 into sin pi by 6 plus h upon in the denominator pi minus 6 एंड 6 के बाद ब्रैकेट. ब्रैकेट इज इंपॉर्टेंट. x के जगह पे pi by 2 plus h ऐसा लिखना है आपको. अच्छा, इसमें मैंने बहुत बार देखा है स्टूडेंट है ना 6 के बाद ऐसा लिखता है. जनरली आई हैव सीन है ना 6 के बाद ऐसा इनटू डालता है. ऐसा कभी नहीं लिखना. ऐसा नहीं है कि ये रॉन्ग है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे, क्योंकि 6 अगर सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दिया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा. ओके, तो व्हाट इज pi by 6 है. 6 इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा इसमें. तो ऑलवेज पुट इट इनटू अ ब्रैकेट. बाय मिस्टेक आई हैव रिटन pi by 2. बोला मैं pi by 6 पर लिखा pi by 2. जस्ट मेक इट pi by 6 है ये. x is equal to pi by 6 plus h है वो, और उसको ब्रैकेट में लिखो ऑलवेज, एज आई सेड प्रीवियसली आल्सो. ओके, नाउ ओवर हियर previous two examples we have applied allied angle formula, क्योंकि वहां पे pi by 2 plus theta था. अब यहाँ पे allied angle formula नहीं अप्लाई हो सकता. So now what do we do? In the numerator we use the formula for cos of a plus b, and over here sin of a plus b. Cos of a plus b and sin of a plus b. Now can anyone tell me cos of a plus b का formula? Recollect. Cos A cos B minus sin A sin B. Very good, perfect. Now someone else except for Keshav can tell me sin of a plus b का formula. Sin A cos B plus cos A into sin A. Very good, perfect. Both of you are correct. तो यहाँ पे cos of a plus b का formula, यहाँ पे sin of a plus b का formula अप्लाई करना है. At the same time डिनोमिनेटर में ये जो -6 है वो इधर ब्रैकेट ओपन हो जाएगा. तो तीन चीजें एक साथ करनी है. cos of a plus b का फॉर्मूला, sin of a plus b का फॉर्मूला और ब्रैकेट ओपनिंग. ठीक है, तो चलो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्टेप. राइट ऑन नेक्स्ट स्टेप. दिस इज फर्दर इक्वल टू, लिखो लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0. चलो आप अप्लाई करो, मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ. cos of a plus b का फॉर्मूला अप्लाई करो, माइनस √3 इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो, होल अपॉन डिनोमिनेटर में. तब तक मैं आपको ब्रैकेट ओपन करके बता देता हूँ. चलो पाई -6 मल्टीप्लाइड टू देम, तो हो जाएगा -पाई minus 6h. क्लोज द ब्रैकेट. -6 दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो विल गेट दिस. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला एंड राइट डाउन व्हाट यू गेट इन दीज टू ब्रैकेट्स क्विकली. ओके, so what is this going to become? चलो लिखते हैं. What is this going to become? Cos pi by 6 into cos h minus sin pi by 6 into sin h. अभी √3 के बाद sin pi by 6 into cos h plus cos pi by 6 into sin h. And close the bracket. Cos A cos B minus sin A sin B, sin A cos B plus cos A sin B.
ठीक है. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप ये सब वैल्यूज आप डालो, cos pi by 6 और sin pi by 6 का वैल्यू डालो एट देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस एंड इन द डिनोमिनेटर प्लस पाई माइनस पाई कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0. प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग दोस ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेज आल्सो. कंपाउंड एंगल के सारे वो कंपाउंड एंगल, अलाइड एंगल, हाफ एंगल, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, है ना, कभी भी लगेगा और हम बोल नहीं सकते कि हमें नहीं आता. यू कैन गिव दैट एज अ रीजन, है ना. तो चलो क्विकली टेल मी वैल्यू ऑफ cos pi by 6. समवन cos pi by 6. Root 3 by 2. Absolutely correct. So this is root 3 by 2 into cos h minus this is nothing but 1 by 2 sin h. ठीक है. sin pi by 6 का वैल्यू माइनस रूट 3 रिमेनिंग सेम और ये वाले ब्रैकेट में दिस इज गोइंग टू बिकम 1 by 2 cos h plus this is going to become root 3 by 2 sin h. Close the bracket. Whole upon in the denominator this is minus 6h and the main bracket closes. वैल्यू डाल दिया हमने, sin pi by 6 और cos pi by 6 का वैल्यू डाला. Nothing much we have done. Okay, now next step. What happens is ये जो सेकेंड वाला ब्रैकेट है ना, ये माइनस रूट 3 इस टर्म को और इस टर्म को मल्टीप्लाई हो जाएगा. वी जस्ट ओपन अप दीज ब्रैकेट्स. तो सेकेंड वाला ब्रैकेट है वो ओपन हो जाएगा. फर्स्ट वाला ब्रैकेट इज गोइंग टू रिमेन सेम. सो राइट ऑन नेक्स्ट स्टेप. नाउ आई जस्ट कंटिन्यू एट द टॉप. ठीक है. ये क्वेश्चन मैं रब कर देता हूँ. दिस इज ऑलरेडी डन. So I just rub this off. By that time, just open up this bracket, and you can wave off this bracket also. First वाले में bracket की जरूरत नहीं है. Second वाला जो bracket है वो open हो जाएगा. Okay, so please write down the next step after this. So this is equal to. अब देखो क्या हो जाएगा. Limit h is tending towards 0. ठीक है. This is root 3 by 2 cos h. minus 1 by 2 sin h minus root 3 by 2 cos h. ठीक है. and minus 3 by 2 sin h upon in the denominator this is minus 6h. अभी सिंपल स्टेप्स शो करने की जरूरत नहीं है. दिस इज अंडरस्टूड. माइनस रूट 3 इंटू हाफ इज माइनस रूट 3 by 2. वो अंडरस्टूड है. नाउ सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन स्टूडेंट्स. ये जो रूट 3 by 2 cos h है और ये जो माइनस रूट 3 by 2 cos h है ना, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. नाउ सी दीज टू आर लाइक टर्म्स. माइनस हाफ sin h एंड माइनस 3 by 2 sin h. ठीक है. अभी sin h है, दैट इज ओके. Now, but just tell me what is the total. Minus half and minus 3 by 2 is equal to how much? Minus 2. minus 2. Absolutely. Very good. So, likho. This is further equal to limit h is tending towards 0 minus half sin h and minus 3 by 2 sin h will become minus 2 sin h हो जाएगा. Upon denominator में क्या बच गया? तो minus 6h बच गया. Please check. I have explained why. And you itself, instead of my explanation, you yourself gave me the answer. Okay. Chalo, problem almost getting over. Minus half sin h minus 3 by 2 sin h is minus 2 sin h minus 6h पहले से है. अब देखो क्या होगा. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 2 3 6 और sin h by h 1. तो आंसर इज व्हाट? 1 by 3. sin h by h 1 हो गया. See, limit h tending towards 0. sin h by h is 1. 2 3 6. 1 by 3 is the final answer. Problem is over. ठीक है. That's it. ठीक है. Now, obviously, allied angle formula कब होता है students apply? You know, when there is pi by 2, मतलब upon में 2 है और upon में 2 नहीं है. Pi by 2 plus h. ठीक है. Then 3 pi by 2 plus h. pi plus h, pi minus h, है ना, ऐसे 2 pi plus h ऐसा. इसके लिए अलाइड एंगल फॉर्मूला कभी भी अप्लाई नहीं होगा.
तो कौन से एंगल्स के लिए अलाइड एंगल फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा? π/6, π/3 एंड π/4. तो राइट डाउन नोट, एक नोट लिख लो इस क्वेश्चन के बाद. आंसर इज ओवर. 1/3 इज द आंसर. नाउ बिफोर आई गिव यू द नोट, आई होप दिस इज बीइंग अंडरस्टूड टू एवरीवन. किसी को कुछ डिफिकल्टी रहेगा तो आप पूछ लो, पहले देख लो ये क्वेश्चन. एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल गिव यू द नोट. चलो ठीक है. राइट डाउन नोट लिखो. राइट डाउन नोट. If the angles are π/6 or π/3 or π/4, if the angles are π/6 or π/3 or π/4, use method of substitution. Use method of substitution. Use method of substitution and addition formulae. And addition formulae. Addition formulae means what? Sin of a plus b, cos of a plus b, tan of a plus b. You know, they are all addition formulas. सब्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस एच करते हैं. तो ये एंगल्स रहेंगे π/6, π/3, π/4. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो करने का ही है, उसके साथ में हमें एडिशन फॉर्मूलेज भी अप्लाई करने हैं, लाइक वी हैव डन इन दिस प्रॉब्लम. ओके चलो, नाउ आई गिव यू वन क्वेश्चन. नोट डाउन दैट क्वेश्चन एज अ होमवर्क सेक्शन. होमवर्क सेक्शन का एक एग्जांपल देता हूँ, उसको आप नोट डाउन करो. अभी जो क्वेश्चन मैंने किया उससे सिंपल है. ओके, give me 30 seconds. Let me just rub this off. I'll give you the question in writing. लिख के देता हूँ मैं आपको. Okay, तो लिखो homework problem. Okay, I think so. This was first, second, third. ये third question था अपना ना. Question number 4 is your homework. Question number 4 is your homework. Just give me 1 sec. Okay, ये लिख लो आप. Evaluate L is equal to limit x is tending towards π/4. लिखो sin x minus cos x upon x minus π/4. ये आपका होमवर्क एग्जाम्पल. Same way as we did the third problem, similarly you have to do the fourth problem. ये आपका होमवर्क है, खाली सब्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा and you know what we did in the previous example. Okay, so question 4 is your homework example. So let's move on to question number 5 students. तो fourth वाला मैं रब कर देता हूँ जो आपका होमवर्क है. Now let's move on to the fifth one. Fifth question आप देखो. L is equal to limit x is tending towards 1 minus x square upon sin pi x. हाँ, ये लिख लो आप, क्वेश्चन है. Okay, now obviously this example cannot be done by 6a and 6b. Okay, so substitution. चलो देखो, let क्या substitution आएगा? Let x is equal to 1 plus h. Let x is equal to 1 plus h. As x is tending towards 1, therefore h will tend towards 0. वो अपना नॉर्मल मेथड जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, वो सारे एग्जांपल्स में यही प्रोसीजर अप्लाई करना है. ओके, नाउ लेट्स कन्वर्ट द प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ h. सब कुछ h में कन्वर्ट हो जाना चाहिए. तो देखो, देयरफॉर L इज इक्वल टू लिमिट
h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, 1 माइनस x के जगह पे आएगा 1 प्लस h द होल स्क्वायर अपॉन इन द डिनोमिनेटर साइन ऑफ पाई, x के जगह पे आएगा 1 प्लस h. क्लोज द ब्रैकेट, क्लोज द मेन वाला ब्रैकेट. ओके, वी गेट दिस. देखो सब कुछ h में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, लिमिट एंड द होल थिंग प्रॉब्लम. नाउ a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और यहाँ पे ये जो पाई है, ये पाई अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो देखो नेक्स्ट स्टेप, n इज इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1 माइनस इसका एक्सपेंशन, तो 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर होल अपॉन इन द डिनोमिनेटर विल बिकम साइन ऑफ पाई प्लस पाई h. पाई ये 1 है, ठीक है ना, दिस इज 1. पाई 1 प्लस h को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पाई प्लस पाई h मिलेगा. नाउ देयर आर टू सिंप्लीफिकेशंस दैट वी कैन डू एट द सेम टाइम. एक तो ये ब्रैकेट माइनस साइन से ओपन हो जाएगा, एंड एट द सेम टाइम चेक द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा. तो कैन एनीवन टेल मी साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इक्वल्स व्हाट? minus sin pi h. Sorry. ठीक है, बराबर है, करेक्ट, एब्सोल्युटली, इज माइनस साइन थीटा. परफेक्ट है. दिस इज गोइंग टू बिकम माइनस साइन पाई एच. परफेक्ट. चलो, वेरी गुड. तो देखो नेक्स्ट स्टेप, तो L इज इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ऊपर माइनस साइन से ओपन कर दो ब्रैकेट को, तो 1 माइनस 1 माइनस 2h और माइनस h स्क्वायर, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर में साइन ऑफ पाई प्लस पाई एच इज माइनस साइन पाई एच. रीजन यू रेड ऑन फॉर योर रेफरेंस, सिंस साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. वो फॉर्मूला है. अलाइड एंगल फॉर्मूला, पाई, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, ये सबके लिए अलाइड एंगल फॉर्मूला होता है, मैंने अभी आपको समझाया. ठीक है, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3 रहेगा, तो साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला. ओके, चलो नाउ सी इन द न्यूमरेटर प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया. नाउ इन द न्यूमरेटर आई विल टेक माइनस h कॉमन. इन द न्यूमरेटर आई विल टेक माइनस h कॉमन. देयर इज अ रीजन व्हाई, दैट आई विल एक्सप्लेन. ओके, देखो नेक्स्ट स्टेप, न्यूमरेटर में माइनस h को कॉमन निकाल लो आप. ओके, तो राइट ऑन नेक्स्ट स्टेप, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, आगे लिखो, L इज इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0. इन द न्यूमरेटर आई टेक माइनस h कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 2 प्लस h अपॉन माइनस साइन पाई h विल बी लेफ्ट आउट. प्लीज चेक, न्यूमरेटर में माइनस h कॉमन लिया, क्यों कॉमन लिया, तो उसका रीजन है. Now check, minus of minus will become plus. Now let's separate the functions. ऐसा लिखो, next step, limit h is tending towards 0. ऐसा लिखो h upon sin pi h. Into, थोड़ा जगह छोड़ दो आप, into 2 plus h लिखो. Come on, quickly, the session is getting over. So let's try to finish it off. ऐसा लिखो आप. See, minus of minus becomes plus. माइनस माइनस प्लस हो गया, h बाय साइन पाई एच हो गया, 2 प्लस h अलग हो गया. नाउ साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है, वैसे उसका रेसिप्रोकल भी 1 होता है, तो हम क्या करेंगे, पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और पाई से डिवाइड करेंगे. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय पाई, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय पाई. नाउ सी व्हाट विल हैपन, लिमिट के लिए ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बिकम 1. Why? Limit theta tending towards 0, sin theta by theta is 1. तो ये 1 हो गया, ये 1 बाय पाई रह गया, और यहाँ पे h का वैल्यू 0 डालो, तो ये 2 प्लस 0 तो 2 हो गया. So this is nothing but equal to 2 by pi, which is the value of limit.
साइन थीटा बाय थीटा रिजल्ट अप्लाई किया स्टूडेंट्स, देखो माइनस और माइनस प्लस हो गया, इसको सेपरेट कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय पाई किया, साइन थीटा बाय थीटा 1 हो गया, 1 by pi and 2 remains, so answer is 2 by pi. Problem is over. 2 by pi is the final answer. Value of the limit is 2 by pi. साइन थीटा बाय थीटा रिजल्ट हमने अप्लाई किया हुआ है वहां पे, रेसिप्रोकल के लिए भी एप्लीकेबल है, आई हैव टोल्ड यू इन द बिगिनिंग इफ यू रिकलेक्ट.